Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The Greenfield projects under the production-linked incentive. Ladies and gentlemen, under its green initiative, FICCI has planted 10 trees in the Honorable Minister's honor at different locations. These are being done at different locations in the country. This green certificate acknowledges the planting of 10 trees in the honor of the Honorable Minister at village Fatehabad in Haryana. Our Secretary General, Shri S.K. Pathak, doing us the honors of presenting the green certificate and this plant. और अब मैं सेक्रेटरी जनरल फिक्की श्री एस के पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि को ग्रीन सर्टिफिकेट और इस पौधे की भेंट के साथ उनका स्वागत करें। एक बार फिर डॉक्टर चावला से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय अतिथि का स्वागत फूलों की भेंट के साथ करें। हमारे सेक्रेटरी जनरल से अनुरोध है कि वे कृपया माननीय अतिथि का स्वागत ग्रीन सर्टिफिकेट और पौधे की भेंट के साथ करें। Mantriya, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Chemical and Fertilizer, for sparing time from his extremely busy schedule to grace this momentous occasion. Ladies and gentlemen, today is a big day. After years of hard work, 40 greenfield projects, plants, manufacturing bulk drugs and medical devices, which hitherto see getting launched today would not have come to fruition. We are grateful to Secretary General FICCI, Dr. Shailesh Pathak, for playing host and providing full support of the Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry to this occasion. I welcome our friends from the media who've turned up in large numbers to cover this history, and we have not earned this sobriquet for nothing. It's taken us years of hard work and dedication to get here. India today boasts of the largest number of WHO GMP certified plants anywhere on planet Earth, and also the largest number of US FDA certified plants outside the United States. Friends, the drugs and pharmaceutical industry in India was 2.4 lakh crores in the year 2013-14. The annual survey of industries for the year 21-22 recently came out, and to our great delight we discovered that this industry has already reached a size of rupees 6 lakh crores. And for those of you who want to understand the meaning behind these numbers, that means a compounded annual growth rate of 12% over the last 10 years. Ladies and gentlemen, on इन सभी प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के लिए मंत्रालय को एवं उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ आज हमारे साथ मंच पर आसीन हैं सचिव DBIIT श्री राजेश कुमार सिंह, schoolmate of mine, Secretary General of FICCI, Mr. Kamlesh Pant, business leaders from the pharma industry, PLI beneficiaries, ladies and gentlemen. I don't have any prepared remarks, so I'm going to speak off the cuff about the PLI scheme in general and about Make in India more generally. This year marks the 10th anniversary of the launch of Make in India,
The idea was to really bump up our manufacturing ecosystem to ensure that it creates of Prime Minister Modi's government. You saw for the first time these tremendous new investments, greenfield units coming up of drugs, of medical devices that have never been produced in India before, and that were and for many of which we were not only import dependent, but we were also strategically dependent and vulnerable in the sense that many of these are strategic supply chains. If you depend overmuch on हमारे फार्मास्यूटिकल विभाग के सेक्रेटरी अरुणेश चावला जी, पाठक जी, हमारे एमपीपीए के चेयरमैन पंत जी, सभी उपस्थित भाइयों, आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम आगे बढ़े। मुझे याद आ रहा है कि देश में कोविड आ चुका था, एक और सारी शिपिंग लाइन बंद थी, एयरपोर्ट बंद थे, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, बॉर्डर पर टेंशन चल रहा था, इस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होनी थी। एक देश में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज थी, लेकिन बल्क ड्रग्स की क्राइसिस होने की संभावना थी, क्योंकि सभी एंट्री पॉइंट यानी कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट सभी बंद थे। जिस कंट्री से आता था वो कंट्री ऐसी स्थिति में हमें टाइम पे देगी नहीं देगी तो क्या, उसका अल्टरनेट मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए ताकि हम वहां से एपीआई नहीं आया, इंडिया में मेडिसिन नहीं बनी तो यही टाइप की कौन सी मेडिसिन है डिसीज में हम उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होता था। उसमें से विषय निकला कि हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता के तहत पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। बल्क ड्रग और मेडिसिन हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में बननी ही चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, देश में बनना ही चाहिए। ये सब विचार से ये पीएलआई स्कीम का प्रारंभ हुआ था और उस वक्त आइडेंटिफाई किया सबसे पहली पीएलआई स्कीम ये श्रेणी में फार्मास्यूटिकल में आई थी और उस वक्त डिसाइड करा था कि 48 प्रकार के एपीआई आइडेंटिफाई करा और 48 प्रकार के एपीआई के साथ बल्क ड्रग के साथ बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए 14,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम लॉन्च करी थी। उसके बाद नहीं हम केवल मैन्युफैक्चरिंग करें बट दुनिया के मार्केट को कैटर करना है तो हमें कॉम्पिटिटिव और बनना होगा और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बल्क में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करके दुनिया की मार्केट में हमें डंप करना पड़ेगा और मार्केट हमारे कब्जे में लेना होगा। तब जाके हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ब्रांड को छोड़ पाएंगे यानी कि हम स्ट्रांगली हमारा माल को बेचें। इसलिए पीएलआई 15,000 करोड़ का लाया और दोनों का बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ। आज मुझे खुशी है हमने एक साथ में 51 प्लांट पीएलआई स्कीम से बने हुए हैं, 22 बल्क ड्रग के और 39 मेडिकल डिवाइस के। आज इतने प्लांट 51 प्लांट चालू हो चुके हैं, उसका इंटरवेंशन भी मार्केट में देखने मिलता है। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी है कि 70 ये जो देश में नहीं बनता तो 75,000 करोड़ रुपीस का जो हम इंपोर्ट करते थे, कंटेनर की क्राइसिस है और उस वक्त मेरे पास पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री भी थी। तो क्या देश में 95% नॉट ओनली फॉर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड 95% कंटेनर एक ही कंट्री बनाती थी और यहाँ क्राइसिस होती थी, देश में कंटेनर थे नहीं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात एंड भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है और वहाँ फर्नेस इंडस्ट्रीज है। तो उन्होंने कहा कि क्या वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स
कंटेनर नहीं बना सकते हैं। तो मैं एक कोविड के दरमियान मेरी विजिट भावनगर हुई तो मैंने फर्नेस इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया। मैंने कहा कि क्या आप कंटेनर नहीं बना सकते देश में? हमारे प्रति वर्ष 3-3.5 लाख कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लगे और दोस्तों 6 महीने में कंटेनर बनाना उन्होंने चालू करा। सरकार प्रो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज प्रो फूअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। और उस वक्त भारत सरकार का 10,000 कोमकर का 10,000 कंटेनर खरीदने के लिए टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर। तो मैंने माननीय मंत्री श्री रेलवे को कॉल करा। मैंने कहा अभी ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है कि देश में कंटेनर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है। तो अफसर लोग मानते नहीं थे, तो मैंने मीटिंग बुलाई। हम दोनों मिनिस्टर बैठे और सभी ऑफिसर्स बैठे। उन्होंने कहा साहब ये सब लोग हर बार टेंडर डालते हैं लेकिन कोई देते नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक रेलवे मिनिस्ट्री के, एक शिपिंग मिनिस्ट्री से 3 सीनियर ऑफिसर जाके ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट करो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उससे खरीदो। वो गया, आके हमको रिपोर्ट दिया जो हो उन्होंने तो 200 करोड़ रुपीस का आपका कहने से, केवल एक व्यक्ति, एक सरकार के वीर देखो आप, सरकार के एक मंत्री जाके कहता है कि आप बनाइए, हम आपको घाटा का बिजनेस नहीं होने देंगे, मदद करेंगे। दोस्तों भारत सरकार के एक मंत्री को कहने से उन्होंने भावनगर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग चालू करा। आज 200 पर डे कंटेनर बनाने की कैपेसिटी उसकी है। तो देश के सरकार वैसा ही ये PLI स्कीम के तहत अभी उनके लिए तो PLI आई ही नहीं है, हमने लाने के लिए कहा था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में API में आज हम क्रिटिकल API के लिए सेल्फ सस्टेन हो गए। दोस्तों ये देश में कुछ बना लेना, कर लेना, इकोसिस्टम क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ जाएगा। ये देश में मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब पढ़ाई में सिलेबस में था कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का प्लांट है, तो हम उसको क्वेश्चन आंसर में लिखते थे। पेनिसिलिन का प्लांट हमारा 60 के दशक में बना था। बाद में जब 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन हुआ और फ्री ट्रेड आया, दुनिया पेनिसिलिन इंडिया में डंप करने लगी। 1998 में ये देश में कंटेनर की क्राइसिस है और उस वक्त मेरे पास पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री भी थी। तो क्या देश में 95%, नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट एंटायर वर्ल्ड, 95% कंटेनर एक ही कंट्री बनाती थी और यहाँ क्राइसिस होती थी, देश में कंटेनर थे नहीं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि यू बिलोंग फ्रॉम गुजरात एंड भावनगर, भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड है और वहाँ फर्नेस इंडस्ट्रीज है। तो उन्होंने कहा कि क्या वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स कंटेनर नहीं बना सकते हैं? तो मैं एक कोविड के दरमियान मेरी विजिट भावनगर हुई तो मैंने फर्नेस इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया। मैंने कहा कि क्या आप कंटेनर नहीं बना सकते देश में? हमारे प्रति वर्ष 3-3.5 लाख कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लगे और दोस्तों 6 महीने में कंटेनर बनाना उन्होंने चालू करा। सरकार प्रो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज प्रो फूअर्स, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। और उस वक्त भारत सरकार का 10,000 कोमकर का 10,000 कंटेनर खरीदने के लिए टेंडर निकला, ग्लोबल टेंडर। तो मैंने माननीय मंत्री श्री रेलवे को कॉल करा। मैंने कहा अभी ग्लोबल टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं है कि देश में कंटेनर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गया है। तो अफसर लोग मानते नहीं थे, तो मैंने मीटिंग बुलाई। हम दोनों मिनिस्टर बैठे और सभी ऑफिसर्स बैठे। उन्होंने कहा साहब ये सब लोग हर बार टेंडर डालते हैं लेकिन कोई देते नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, एक रेलवे मिनिस्ट्री के, एक शिपिंग मिनिस्ट्री से 3 सीनियर ऑफिसर जाके
कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उससे खरीदो। वो गया, आके हमको रिपोर्ट दिया कि उन्होंने तो 200 करोड़ रुपीस का आपका कहने से, केवल एक व्यक्ति, एक सरकार के विल देखो आप, सरकार के एक मंत्री जाके कहता है कि आप बनाइए, हम आपको घाटा का बिजनेस नहीं होने देंगे, मदद करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार के एक मंत्री को कहने से उन्होंने भावनगर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग चालू करा। आज 200 पर डे कंटेनर बनाने की कैपेसिटी उसकी है। तो देश की सरकार ऐसा ही ये पीएलआई स्कीम के तहत, अभी उनके लिए तो पीएलआई आई ही नहीं है, हमने लाने के लिए कहा था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई में आज हम क्रिटिकल एपीआई के लिए सेल्फ सस्टेन हो गए। दोस्तों, ये देश में कुछ बना लेना, कर लेना, इकोसिस्टम क्रिएट करो, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ जाएगा। ये देश में मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब पढ़ाई में सिलेबस में था कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का प्लांट है, तो हम उसको